وقال علي عليه السلام بزو الله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، وفيهم محموم الله وفرج الله حمه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وغزى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: زم الله فزنا وصعدنا، وكذلك شيتنا فاز وصعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله: يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله،
يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد يا الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا جعفر يا محمد بن علي يا التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا محمد ياسر بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وصي الحسن والخلف الحجاج والقائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمة معدة ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى
الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاء يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليه أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميه من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على एक और नारे सलवात का सहारा। जहाँ भी जाऊं अपना हो के बेगाना मोहम्मद का, जहाँ भी जाऊं अपना हो के बेगाना मोहम्मद का, मुझे सब ज़ेरे लब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का, मुझे सब ज़ेरे लब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। मोहम्मद की हकीकत बस अली जाने, खुदा जाने। मोहम्मद की हकीकत बस अली जाने, खुदा जाने। ज़बाने खल्क़ पर जारी है अफ़साना मोहम्मद का, ज़बाने खल्क़ पर जारी है अफ़साना मोहम्मद का। और जो देखिए, खुदा ने खुद मोहम्मद से मोहम्मद का किया सौदा। शेर मुलाज़ा फरमाइए। खुदा ने खुद मोहम्मद से मोहम्मद का किया सौदा, मुकर्रर करके अर्शो फर्श बयाना मोहम्मद का, मुकर्रर करके अर्शो फर्श बयाना मोहम्मद का। गवाही क्यों न दे सब अंबिया ख़त्मे नबूवत की, गवाही क्यों न दे सब अंबिया ख़त्मे नबूवत की। पिया दस्ते खुदा से सबने पैमाना मोहम्मद का, पिया दस्ते खुदा से सबने पैमाना मोहम्मद का। जहाँ भी जाऊँ अपना हो के बेगाना मोहम्मद का। चलिए देखिए, जिसे मेराज कहते हैं
में नाज है उनका, जिसे मेराज कहते हैं, खिरा में नाज है उनका। हदे कौसैनो अदना है रुक जाना मोहम्मद का। हदे कौसैन अदना है रुक जाना मोहम्मद का। मलक हैरत से तकते थे ये मंजर फतह मक्का में। मलक हैरत से तकते थे ये मंजर फतह मक्का में। क़ताएं बख्श कर दुश्मन की शर्माना मोहम्मद का। क़ताएं बख्श कर दुश्मन की शर्माना मोहम्मद का। और ये दो शेर ख़ास तौर पे क़यामत क्या है हम सब आसियों की ईद का दिन है। क़यामत क्या है हम सब आसियों की ईद का दिन है। कि उस दिन जन्नतें बांटेगा काशाना मोहम्मद का। कि उस दिन जन्नतें बांटेगा काशाना मोहम्मद का। ज़ुलेख़ाए क़यामत आ रही है बन के दीवानी। शेर पेश करूं क़िबला। ज़ुलेख़ाए क़यामत आ रही है बन के दीवानी। मुनासिब तो नहीं दामन बचा जाना मोहम्मद का। ज़ुलेख़ाए क़यामत आ रही है बन के दीवानी। मुनासिब तो नहीं दामन बचा जाना मोहम्मद का। बदल सकती नहीं हरगिज़ उसे गर्दिश ज़माने की। बदल सकती नहीं हरगिज़ उसे गर्दिश ज़माने की। ज़माने को बदल देता है दीवाना मोहम्मद का। बदल सकती नहीं हरगिज़ उसे गर्दिश ज़माने की। ज़माने को बदल देता है दीवाना मोहम्मद का। और ये दो शेर आखिरी इसमें ख़ास तवज्जो चाहता हूँ इस पर। कहे हर मुए तन इख़राब इस्मी रब कल्लाला। कहे हर मुए तन इख़राब इस्मी रब कल्लाला।
वाला हिराए जामे होए जिस घड़ी आना मोहम्मद का हिराए जामे होए जिस घड़ी आना मोहम्मद का। और ये शेर शायद नया मजमून हो, पहली दफ़ा नात में ये मजमून मैंने नज़म किया है। मिसाले ताज़िया थी करबला की खाक शीशे में, मिसाले ताज़िया थी करबला की खाक शीशे में, मकाने उम्मे सलमा था अज़ा खाना मोहम्मद का। मिसाले ताज़िया थी करबला की खाक शीशे में, मकाने उम्मे सलमा था ज़ाक़ाना मोहम्मद का। मकाने उम्मे सलमा था अज़ा का नाम मोहम्मद का। अली की जान सारी है सरोश इस बात की शाहिद, अली की जान सारी है सरोश इस बात की शाहिद, नजफ की खाक से बनता है परवाना मोहम्मद का। अली की जान सारी है सरोश इस बात की शाहिद, नजफ की खाक से बनता है परवाना मोहम्मद का। जहाँ भी जाऊँ अपना हो के बेगाना मोहम्मद का। मुझे सब ज़ेरे लब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। एक अल्लाह नारे सलवात का सहारा दे। बस अच्छा। या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त। एक नारे सल्लल्लाहु का सहारा। या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के
बस या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफ़ा के है ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल नारे सलवात का सहारा मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस मुश्किलों शेर देखिए देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस
मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले, मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले। ये दुआ तो रोज़े खैबर इतनी काम आई के बस। मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले। ये दुआ तो रोज़े खैबर इतनी काम आई के बस। जब ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार, जब ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार, सामने आँखों के ऐसी बरख लहराई के बस। सामने आँखों के ऐसी बरक लहराई के बस। काट कर मरहब को जब पहुँची ज़मीं तक जुल्फ़िकार, काट कर मरहब को जब पहुँची ज़मीं तक जुल्फ़िकार, शह परे जिब्रील से फौरन सदाई के बस। या मोहम्मद। अब ये एक शेर दो शेर बस, ज़्यादा वक्त हो गया है। लाशे सलमान ने हैदर को आता देख कर, लाशे सलमान ने हैदर को आता देख कर, मौत की आगोश में ली ऐसी अंगड़ाई के बस। मौत की आगोश में ली ऐसी अंगड़ाई के बस। एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल, एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल। क्या कहूँ यारों मुझे भी ऐसी नींद आई के बस। क्या करूं क्या कहूं यारों मुझे भी ऐसी नींद आई के बस।
उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। दफता मेरे सराहने से सदाई के बस या मोहम्मद। मोमिनीन, यहाँ प्रोग्राम के बाद नमाज होगी, उसके बाद इंशाल्लाह न्याज का इंतज़ाम है और अफ्तार का, और बाकी ऐलानात भी उसी वक्त होंगे। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक ये उठा लीजिए, रोजा है ना, कहीं बेख्याली में। जी सही, थोड़ा सा नहीं हटा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सलावत। काबिल सर एहतराम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व सादातो मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में आज 27 रजबुल मुरज्जब को जो जश्न मनाया जा रहा है, इसकी दो मुनासबतें हैं। एक तो कल शब में क्योंकि शब मेराज का जश्न नहीं हुआ, तो आज गोया मेराज का जश्न है। और दूसरी मुनासबत है बेअसत रसूल। आज यौम मबअस है। आज के दिन हुजूर ज़ाहिरी तौर पर मबऊस बरिसालत हुए। आज आपने ऐलान किया। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो बेसत का दिन है, ये इतना इम्पोर्टेंट दिन है, इतनी अहम ईद है कि इस दिन अगर कोई रोज़ा रखे तो उसे 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो इस अजीम ईद को उम्मत मुस्लिमा ने बिल्कुल फरामोश कर दिया है। सारी रात मेराज का जलसा करने वाले दिन में हुजूर की बेसत का
एक जिक्र ही नहीं करते। तो ये हमें अल्लाह ने इज्जत बख्शी है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की हर खुशी में खुशी, हर गमी में गमी करते। हुसैनिया की इंतज़ामिया काबिल सद मुबारकबाद है कि जिन्होंने ऑफ सीजन में ऑन सेशंस रखे, क्योंकि उमूमन इन दिनों में लोग ज़रा मराकज़ से दूर होते हैं, मगर बेहम्दुलिल्लाह उन मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह तौफीक खैर मरहमत फरमाए कि जिन्होंने डेली नज़र व न्याज का एहतमाम भी किया है और माशाअल्लाह तशरीफ़ भी ला रहे हैं। अल्लाह इन अज़कार के सदक़े में तमाम हाज़रीन व हाज़रात और बानियान और बानियात को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। क्योंकि मुनासबतें दो हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेराज को मैं शुरू करता हूं। समझ लीजिए मैं शुरू कर रहा हूं जलसा मेराज, ये खत्म होगा पहले कुछ एतराज़ात हैं, जरा उनका जवाब सुन लीजिए। पहला एतराज़ ये है कि वो कैसे गए, इतनी देर में वो गए कैसे और आए कैसे। तो इसका एक जवाब तो ये है कि आपने कुरान में आयत पर तवज्जो नहीं की। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह फरमा रहा है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अब हमसे न पूछो कैसे गए, उससे पूछो कैसे लेकर गया। दूसरा एतराज, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, एंट्री और एग्जिट यह है कि मस्जिद हराम से गए, ले जाए गए और मस्जिद अक़सा तक गए। तो ये तो कोई मेराज ना हुई। मेराज तो होती है ऊपर की तरफ, ये दोनों मस्जिदें हैं नीचे की तरफ, तो फिर मेराज तो हुई ना। आप अगर कह रहे हैं मेराज हुई है तो मस्जिद अक़सा या तो बैतुल मुक़द्दस वाली मस्जिद मुराद नहीं। अगर मस्जिद अक़सा से मुराद बैतुल मुक़द्दस है तो फिर मेराज तो ना हुई। मेराज तो ऊपर जाना चाहिए था, उरूज से है मेराज। अजीब बात यह है कि अक़सा का जब हमने तर्जमा देखा, अक्सर मुतरजमीन ने कुरान के, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि काबे से गए और बैतुल मुक़द्दस तक गए और वापस आ गए। अब हमने जब अक़सा का माना देखा तो अक़सा का माना लिखा था वो मस्जिद जो कायनात में सबसे दूर है। अब आप बताइए कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा तो 4-6 घंटे की टोटल ड्राइव है। 1 घंटे में, पौने घंटे में तो जहाज पहुंच जाता है। तो यह कहना कि सबसे दूर वाली मस्जिद में गए, तो वो सबसे दूर तो मस्जिद है नहीं। आप बताइए कि वो दूर वाली मस्जिद कहां है। फरिश्ता ये कहता है जो हुजूर का पुराना साथी है। समझाने के लिए लफ्ज बदल दूं, हुजूर का पुराना सहाबी है, नूर के दौर का सहाबी है, वही का है ना। वो कहता है लो दनाओ तो अम्मुलतन ला तरक, तो अगर मैं एक बालिश्त आगे बढ़ जाऊं तो मेरे पर जल जाए। तो पता चला कि साथ रहना अगर बचा सकता होता तो जिब्रील को बचा लेता। सिर्फ साथ रहना नहीं बचा सकता। या रसूल अल्लाह,
क्या है? साथी तो ये बहुत पुराना है। पता चला सिर्फ साथ रहने से बचत नहीं हो सकती। इंसान को अपना मकाम पहचानना चाहिए। फरिश्ता है, वो मकाम पहचान गया कि मैं हमसरी न करूं आका की वरना जल जाऊंगा। तो एक हमें उसूल और मिल गया कि जो भी कभी हमसरी की कोशिश करेगा वो नमाज क्या पढ़ाएगा, वो तो खुद चल जाएगा। ये दूसरा मसला हल हो गया। अब आइए जरा तीसरा मसला हल करें कि ये अक्सा है कौन सी। तो जिब्रील तो कह रहा है कि मैं आगे जा नहीं सकता, और गए हुजूर वहां तक है, उस मस्जिद तक कि जो सबसे दूर है। अब सबसे दूर अगर देखा जाए तो कल आमाल में मैंने अर्ज किया था, हुजूर फरमाते हैं उदनो मिन्नी की 1000 सदाएं आई और करीब हो मेरा बंदा, और करीब हो जा मुझसे। 1000 मरतबा खालिक ने मुझे कहा और करीब हो, और हर दफा मैंने इतना सफर किया जितना जमीन से आसमान अव्वल का है। तो गोया 1000 मरतबा जमीन से आसमान पे जाएं तब भी मेराज का फासला खत्म नहीं होता, इसलिए कि वो तो उससे भी ऊपर है। कोई मुलादा फरमा लिया आपने? ड्यूरेशन टाइम की भी देख ले कि जलसे पढ़े जाते हैं, पानी हिलता रहा, पानी चलता रहा और कुंडी हिलती रही, और आका गए भी और आ भी गए। अलबत्ता रिवायत उनसे कीजिए कि जो मक्के में साथ रहे हो, उनसे न कीजिए रिवायत कि जिनका साथ ही मदीना में हुआ हो। एक ये कंफ्यूजन हो गई कि अब कोई साहब यहां टोरंटो के मसलन मुझसे कहे कि हम तो मौलाना को गांव से जानते हैं, उनका हमारा साथ तो हुसैनिया के सदके में हुआ है, गांव से कैसे जान लिया? उन्होंने हमारा गांव देखा नहीं। ये हमारे वसीम साहब बैठे हैं जो बहुत बड़े लीडर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और ये ईवानों में भी रहे हैं बड़ा अरसा। अगर ये कहें कि मैं जानता हूं इन्हें गांव से, तो ये बात ठीक है, क्योंकि ये हमारे इलाके के। तो आदमी रिवायत उससे करे कि जिसका साथ उस टाइम पे हो और उस जगह पे हो। तभी तो आज तक मेराज के बारे में कंफ्यूज है। मेराज है उरूज से, और उरूज इतना है अल्लाह अकबर कि जमीन से आसमान का 1000 मरतबा सफर कीजिए। जरा तवज्जो करें, वो भी अभी कम है, क्योंकि कुरान कहता है फदना फतदल्ला फकाना काबा का हुसैन और अदना। अभी तो और ऊपर है, यानी बस 2 कमानों का काबा का हुसैन का फासला रह गया। जरा तवज्जो फरमाए, तो कितनी दूरी है। अब समझ में आई बात कि ये कोई मस्जिद है उधर, और वो मस्जिद ऐसी है जिसमें दाखिला जिब्रील का भी मना है। जरा समझते जाए, खुदा आपको मेराज का जरा लुत्फ भी आए। वहां दाखिला जिब्रील का भी मना है, वहां जिब्रील नहीं जा सकते जो सैयदुल मलाइका है। तभी तो कह रहे हैं कि मेरे पर जल जाएं, अगर मैं एक बारिश आगे चला जाऊं। तो जिब्रील उस मस्जिद में गए नहीं। जब जिब्रील नहीं गए, ये पहला बशर है जो अब जा रहा है हुजूर की शक्ल में। इससे पहले तो कोई वहां गया नहीं, और अल्लाह तो सजदा करता नहीं, फरिश्ता गया नहीं, मखलूक गई नहीं, और मस्जिद मस्जिद बनती रही जब तक सजदा ना हो। अल्लाह सजदा करे तो खुदा नहीं रहता। अल्लाह अकबर। फरिश्ता वहां गया नहीं, इंसान वहां पहुंचा नहीं, यानी यूं कहूं मखलूक की वहां अब तक दस्तरस न थी। यह पहली मखलूक है जिसको यह इज्जत हासिल हो रही है कि वहां बदन के साथ
तशरीफ ले जा रहे हैं तो मखलूक वहां गई नहीं, खालिक सजदा करता नहीं, मस्जिद उस वक्त तक मस्जिद बनती नहीं जब तक सजदा न हो। तो कुरान गलत तो कहता नहीं कि मस्जिद हराम से ले गया और मस्जिद अक्सा पे ले गया। अक्सा मस्जिद बैतुल मुक़द्दस वाली नहीं, वो मा फौकल अर्श है कि जिसका किसी को पता नहीं, जिब्रील को भी नहीं पता, फरिश्ते को भी नहीं पता, जिन को भी नहीं पता, बशर को भी नहीं पता, या अल्लाह को पता है या मोहम्मद वाले मोहम्मद को पता। तो मुलाजा फरमाया आपने, ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह कुरान में मफरूजों पे बात करे। हमारे यहां होता है, हमारे यहां भी एक सेंटर है, मस्जिद नहीं है वो, मगर हम कहते हैं उसको मस्जिद है। अगर मस्जिद होती तो मुशरिक का दाखला वहां बंद होता। ठीक है ना, ये आकाम मस्जिद है, मस्जिद के आकाम, बल्कि हमारे लोग इसलिए मस्जिदें बनाते नहीं। माशाल्लाह बड़े समझदार हैं कि कहां हर वक्त की नमाज कायम करनी पड़े। वहां तो फजर भी होगी, जोहरैन भी होगी, मगरिबैन भी होगी, तो बेहतर यह है कि मस्जिद ही ना बनाओ, कि जब मस्जिद ही नहीं थी तो 5 वक्त हाजिरी कैसे देते। माशाल्लाह कितने समझदार हैं। हालांकि उसूल यह था मुसलमानों का, वो जिस शहर में भी फतूहात के बाद वारिद होते थे वो दारुल खिलाफा बाद में बनाते, मस्जिद पहले बनाते। और आज अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके अपने मौला का एक जुमला ऐसा कहूं कि फिर मस्जिद से निकलने को दिल न चाहे। एक जुमला मौला कायनात का सुन ले, ये किसी का मौला नहीं कह सकता, ये उन्हीं का मौला कह सकता है जो दिल से मस्जिद जाता हो। मौला फरमाते हैं अल जुलूस फिल मस्जिद खैरुम मिनल जुलूस फिल जन्नत। मौला कायनात फरमाते हैं मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से अफजल है। कोई समझने वाली कैसी हो? मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से अफजल है। अब पढ़े लिखे थे इमाम के चाहने वाले भी, उन्होंने कहा सरकार सारी दौड़ जन्नत के लिए कि वहां पहुंच जाए। मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से अफजल कैसे हुआ? सरकार फरमाते हैं लिअन्नल जुलूसा फिल जन्नत लिन्नफ्स वल जुलूसा फिल मस्जिद लिल्लाह। क्योंकि जन्नत में बैठना है अपने लिए, मस्जिद में बैठना है अल्लाह के लिए। इस इरशाद के बाद शियायान अली को चाहिए कि वो मस्जिदों को भर दें। मौला का ये इरशाद है, अल्लाह अकबर। तो ये तो तय हो गया कि मस्जिद तो कोई दूर है, और इतनी दूर है जहां मखलूक की रसाई नहीं, अफजल मखलूक के अलावा कोई वहां जा सकता ही नहीं, वहां है। और मस्जिद का स्टेटस ये है कि मस्जिद है ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, यह है ज़र्फ़ मकान। मस्जिद जाए सजदा, मस्जिद भी कहा गया, मस्जिद भी कहा गया। हुजूर से किसी ने पूछा था कि आप कहां कहां मस्जिद बनाएंगे, तो आपने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा। अल्लाह ने सारी जमीन मोहम्मद के लिए मस्जिद बनाई है। अल्लाह मौला सलामत रखे। जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा करो, यह सुन्नत पैगंबर है। तो मस्जिद तो है, मगर वो मस्जिद ये नहीं, ये मस्जिद अक्सा नहीं, वो है वहां अक्सा यानी सबसे दूर, उससे आगे दूर कोई नहीं, उससे आगे कोई मस्जिद नहीं। मस्जिद बन नहीं सकती
जब तक कोई सजदा न करे, और आज जुमला सुन लीजिए, शिया सुन्नी दोनों कहते हैं, जब तक रूटीन से सजदा ना हो, एक आध दफा सजदा किया तो वो हुक्म मस्जिद नहीं है। जब तक रूटीन से सजदा ना हो, जब तक रूटीन से सजदे ना हो, जब तक रूटीन से कुछ लोग मिलके सजदे ना करें, वो मस्जिद होती नहीं। अल्लाह सजदा करे तो खुदा नहीं रहता, जिब्रील वहां पहुंच नहीं सकता। जब जिब्रील नहीं गया तो कोई और कब पहुंचा होगा? अब कोई ऐसी हस्तियां बता दो जो आलम अनवार में वहां सजदा करती रही और वो मस्जिद अक्सा बनता रहा। तशरीफ या जी। तो मुलाजा फरमा लिया आपने, माशाअल्लाह। आपके शहर के आलिम हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना सैयद हुसैन शिराजी साहब किबला भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात आलिया में इजाफा फरमाए। तो आज किबला मोहतरम और आगा साहबान, आज की गुफ्तगू हमारी हो रही है जलसा मेराज पर, क्योंकि हमें कहा टीवी वालों ने कि हमने सारा गूगल तलाश कर मारा, हमें कोई अपनों का जलसा मेराज मिला ही नहीं। मैंने कहा आज ऐसा जलसा मेराज पढ़ेंगे, हम रहें ना रहें जलसा रहेगा, ऐसा जलसा। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी इकबाल भाई। तो माशाल्लाह मुलाजा फरमा रहे हैं, आपके इब्तदाई गुफ्तगू ही में जो मुकदमा दुरुस्त किया है मेराज का, बड़े मसाइल उसमें हल हो गए। ये भी अंदाजा हो गया कि ले वो गया, लिहाजा उससे पूछो कैसे ले गया, इतने से वक्त में कैसे ले गया। असल में बात यह है, मैं एक ज़माने में जब सुनता था कि मौला अली जब आए, अभी हमारे अहलियान हैदराबाद बड़ा ज़बरदस्त जश्न करते हैं यहाँ पर मौला कायनात का, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला और तौफीक दे कि बेहतर से बेहतर अंदाज में मौला का जिक्र हो। तो जब मौला के बारे में ये रिवायत पढ़ी जाती थी या पढ़ी गई, सबसे पहले मैंने ये इज़्ज़त हासिल की थी न्यूयॉर्क में। तो मेरे एक दोस्त नाराज़ हो गए और वो तकरीबन कोई आगा साहब 3 साल नाराज़ रहे, 3 साल के बाद राज़ी हुए। अब अगर एक एक दोस्त को हम मनाने जाएं तो तबलीग तो हो गई, फिर कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाता है, एक आध तो नाराज हो ही जाता है। हमने भी कहा भी आप अल्लाह के हवाले, आप जाने खुदा जाने। खैर आ गए वापस, तो आकर पूछा कि आज हम 3 साल के बाद आए हैं, ज़रा समझा दीजिए, आपने एक गलत रिवायत पढ़ी थी। क्या रिवायत थी? आपने पढ़ा था कि जब हज़रत अली आए तो दस्ते पैगंबर पर उन्होंने तौरात सुनाई, उन्होंने ज़बूर सुनाई, उन्होंने इंजील सुनाई, उन्होंने कुरान सुनाया, उन्होंने आदम के सहीफ़े सुनाए, उन्होंने शीस के सहीफ़े सुनाए, उन्होंने नूह के सहीफ़े सुनाए, उन्होंने इब्राहीम के सहीफ़े सुनाए, उन्होंने मूसा ईसा के सहीफ़े सुनाए, उन्होंने सुरयानी में, इब्रानी में, अरबी में किताबें पढ़ी, सहीफ़े पढ़े। तो वक्त कितना था? मैंने कहा असल बात यह है कि आप अपने अब्बा हुजूर से मौला अली को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप अपने अब्बा हुजूर से कंपेयर करेंगे तो फिर तो वक्त बिल्कुल कम है। आपको यह समझना चाहिए कि जो पढ़ रहा है तमाम कायनात की तनाबे इसके दस्ते कुदरत में है, जब चाहे वक्त बढ़ा ले, जब चाहे वक्त को घटा ले। यह है बात असल। तो जलसा मेराज में ये आज जो तमहीदें उस्तवार हो गई, गलत फहमियों का भी इजाला हो गया। हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट वो है कि जो मेराज का जलसा नहीं करता, एक वो है जो मेराज का जलसा तो करता है मगर मुर्दा जलसा करता है, रूह के बगैर जलसा करता है। जो लोग जलसा नहीं करते
इत्तेफाक से उनके यहाँ एक दफ़ा हम बुलाए गए 27 की शब को। जलसा तो वो करते नहीं, उनके स्कूल ऑफ थॉट में जलसा जायज़ ही नहीं, जश्न मनाना उनके यहाँ जायज़ ही नहीं। तो उन्होंने हमें बुला लिया कि मस्जिद में आपने तकरीर करनी है 27 रजब के बारे में और कोई बिदत नहीं करनी। हमने कहा कोई बात नहीं, रोज़ा इफ्तार करवा दीजिए, जैसे हमें आप थोड़ा वक्त से पहले इफ्तार करवा रहे थे। हमने कहा रोज़ा इफ्तार करा दीजिए क्योंकि आज बड़ा रोज़ा है। कहने के आज का है क्या रोज़ा है? मैंने कहा कल, असल में तो रोज़ा बड़ा कल का है, मगर हम 26 को भी रख लेते हैं, 26 भी रखते हैं, 27 भी रखते हैं, 28 भी, तो ये 26 है भी बड़ा रोज़ा है। खैर कल की बात थी, यानी शबे मेराज की। तो हम जलसा जब पढ़ने गए तो हमने कहा भाई आज असल बात यह है कि हमें हुक्म दिया गया है कि हम मेराज पढ़ें और साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि हुजूर की तारीफ ना करें। तो आगे से वो कहने लगे अरे किसने कहा है, हुजूर की तारीफ तो जरूर कीजिए। हमने फिर पूरा मेराज वहां पढ़ दिया। तारीख में पहली और आखिरी मर्तबा उनके स्कूल ऑफ थॉट में भी मेराज पढ़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहां या रसूल अल्लाह के नारे भी गूंज गए। आप हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, फिर से ना। असल में रजा का कसूर है, उस्ताद को अकेला छोड़ दिया है। आगे आगे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो जलसा मेराज आज का उन्वान है। तो मेराज मैंने अर्ज किया, अब यहां एक सवाल का जवाब और भी दे दें ताकि जरा वो गलत फहमियां दूर हो जाए। एक जो सवाल रेज होता है उसी में वो मुर्दा और जिंदा का भी जवाब आ जाएगा कि ये तो है बशर, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ये तो बशर है, तो बशर होकर कैसे गए? ये एक एतराज है, बशर होकर कैसे गए? तो जिस जमाने में जहाज उड़ने लगे थे, हम उस वक्त बच्चे थे, हमने पूछा था मौलवी साहब से कि ये बशर हो के जहाज कैसे उड़ा रहा है। तो मौलवी साहब को खैर पता नहीं था उस वक्त बेचारों को कि कैसे उड़ा रहा है। बाद में पता चला कि एक एंटाई ग्रेविटी कुव्वत होती है, कशिश सिकल खींचती है नीचे की तरफ। तो एंटाई ग्रेविटी अगर कुव्वत लगा दी जाए, ये साइंस का ज़ाहिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो फिर वो चीज़ जो अपने ओरिजिन को छोड़ देती है, ओरिजिन उसको अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे मैग्नेटिज्म है मसलन, वो लोहे को खींचता है, सोने को नहीं खींचता। और अगर उसमें एंटाई मैग्नेटिज्म कुव्वत लगा दी जाए तो वो फिर नहीं खींचेगा। तो गोया एंटाई ग्रेविटी जो कुव्वतें हैं वो इस जहाज को ऊपर ले जाती हैं जितना भी भारी हो। हालांकि ओरिजिन इसका यहाँ का है, बना हुआ तो यहाँ का है, इधर का बना हुआ है। तो इधर उसको खींचती है मिट्टी, क्योंकि फौलाद भी मिट्टी ही से बना है, इसलिए उसे खींचती है। तो उधर उड़ नहीं सकता जब तक एंटाई ग्रेविटी कुव्वतें ना हो। तो मौलवी साहबान ने बेचारों ने घबरा के ये कहा कि शायद अल्लाह ले गया होगा, एंटाई ग्रेविटी कुव्वतें अल्लाह ने भी इस्तेमाल कर ली होंगी। मैंने कहा तुमने समझा नहीं, ओरिजिन की तरफ शायद खिंचती है, समझिए नहीं, ओरिजिन की तरफ शायद खिंचती है। जो मिट्टी का बना है उसे जमीन खींचेगी, जो नूर का बना है उसे अर्श खींचेगा। मैं अल्लाह गवाह है, एक मर्तबा हमारे भाइयों की मस्जिद में था और मैंने यही इत्तेफाक से जुमला कह दिया कि ये बने हैं नूर के और हम बने हैं खाक के। हमारा
देखिए तवज्जो फरमाइएगा, हमारे लिए मेराज ये है कि हम ऊपर जाएं। ये मेराज उनकी नहीं है, ये मेराज हमारी है। उनके लिए क्या मेराज है? जिनकी कदम राहों में कायनात की तनाबे हों, उनके लिए मेराज की कोई बात नहीं है। ये मेराज उन नबी जो कहा जाता है, क्योंकि नबी ले जाए गए इसलिए, वरना असल मेराज जो है इंसानियत की है। ये बशर की मेराज है कि बशर होते हुए, क्योंकि नूर का पैकर थे, वहां गए। वरना अगर आप ये कहें कि ये हुजूर की मेराज है, हुजूर तो पहले वहां रह चुके हैं, हुजूर तो आए वहीं से हैं जहां ले जाए गए हैं। कुरान इसकी दलील दे रहा है, या आयशतु अन्नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा। इंसान पलटता अपने वतन में है, परदेश में नहीं पलटता। यानी मैं कहना यह चाहता हूं, टोरंटो में इस जुमले की कदर होगी। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि अगर हम उधर जाएं तो क्वेश्चनेबल है, वो अगर इधर आए तो क्वेश्चनेबल है। ये ना पूछो वो वहां कैसे गए, पूछो यहां कैसे रह गए। अल्लाह है। कुछ मुलाजा फरमा लिया आपने। अच्छा, हुजूर गए हैं मेराज पर, ये गलत फहमियां दूर कर लीजिए। मसलन जिनके बारे में मशहूर है ना कि उनके घर से गए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। गए हैं जनाबे उम्मे हानी के घर से, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की हमशीरा है। वहां मेहमान थे, आप कजन के घर में मेहमान थे, वहां से ले जाए गए। वो जगह आज भी खाना काबा के सामने मौजूद है, जहां से ले जाए गए। अब ले जाए गए हैं मिसाल के तौर पर अमेरिका से, और कोटेशन दे रहे हैं कनाडा वाले, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये गलत फहमी जरा दूर कर लीजिए कि घर वालों को चाहिए कि वो बताएं। अच्छा, ये गलत फहमी भी दूर हो गई। अब एक गलत फहमी और दूर कर ले। हमारे यहां ये आज इंशाल्लाह बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। जब हुजूर तशरीफ ले गए तो जब अल्लाह ने वेलकम कहा हुजूर को, तो अंदर से जो आवाज आई वो आवाज थी अली की, वो लहजा था अली का। हुजूर ने फौरन पूछा, असबकनी अली, क्या अली मुझसे पहले यहां पहुंच गए? कुदरत ने जवाब दिया, नहीं, अली आपसे पहले नहीं पहुंचे। अली को तो रूए जमीन पर रहना है, इसलिए कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली रह नहीं सकती। कोई समझे है या नहीं? यह नहीं हो सकता कि दोनों चले जाएं, यह हो सकता है कि दोनों यहां रहे। यह नहीं हो सकता कि दोनों चले जाएं। जब तक जमीन पे हुज्जत खुदा न रहे तब तक जमीन के बका की कोई गारंटी नहीं होती। अहमद को अगर हुज्जत इब्नुल हसन को वैसे नहीं मानते हो, अपनी जिंदगी इंश्योरेंस समझ के ही मान लो कि तुम बर्बाद हो जाते अगर नरजिस का लाल ना होता।
कुदरत की आवाज आई। ये हमारे समझाने के लिए है, कोई ये ना समझ ले कि हुजूर को पता नहीं था। ये हमारे समझाने के लिए, हुजूर को इल्म था कि ये लहजा भाई का है, ये हुजूर जानते थे। तो हुजूर ने हमारे समझाने के लिए पूछा। बहरहाल तूने दूसरे लोगों से भी गुफ्तगू की है, कलाम तो की है तूने। देखिए एक सैंपल होता है, सैंपल, एक सैंपल को देख के आदमी पूरे प्रोडक्ट को समझ जाता है। अब उसकी मर्जी वो दरख्त से बोले, उसकी मर्जी वो पहाड़ से बोले, उसकी मर्जी वो तूर से बोले, उसकी मर्जी वो दरिया से बोले, उसकी मर्जी वो हवाओं फिजाओं से बोले। अब वो कैसे बोलता होगा, कम से कम मेराज की शब ने बता दिया जैसे अली बोलते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी मेहरबानी। खुदा ना खास्ता ये ना समझे लैसा कम इसलिए शय, हम ये नहीं कह रहे कि मौला अली खुदा की तरह है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर लहजा अली का अडॉप्ट किया अल्लाह ने। आप ईमान से बताइए, ये हम भी जब छोटे थे, हमारे ये मौलाना शिराजी साहब के वालिद साहब के बिला अल्लामा सैयद इमदाद हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे चचा बुजुर्गवार थे। तो हम भी जब इब्तिदा में आए तो अल्लामा शिराजी का लहजा, उनका स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश की। कोशिश ये की जाती है कि जो आइडियल हो या जो आइकान हो उसका लहजा अडॉप्ट किया जाता है। अब मैं न तो अली को खुदा कहता हूं, न मिसले खुदा कहता हूं, इतना जरूर कहता हूं अल्लाह का आइकान है तो अली है, अल्लाह का आइडियल है तो अली है। ठीक है ठीक है जी ना। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए ये हमारे अजीज भी हैं, वसीम साहब गोंदल साहब, इनके वालिद साहब भी वजीर रहे, ये खुद भी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे, ईवानों में दोनों भाई ये बड़े रहे हैं। आप इनसे पूछें जो स्पीकर होता है, स्पीकर वो भी होता तो मेंबर ही है ना पार्लियामेंट का, तो उसे स्पीकर क्यों कहते हैं? उसे क्यों दो जीने ऊपर बिठाया जाता है? होता तो वो भी मेंबर ही है, तो दो जीने ऊपर क्यों बैठ रहा है? इसलिए कि वो स्पोक पर्सन है पूरे ईवान का, ईवान की पॉलिसी का ऐलान करता है वो। अब समझना अली को लिसानुल्लाह क्यों कहा गया? आदम से लेकर महदी तक अल्लाह की पॉलिसी का ऐलान करने वाले का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आप मुलाजा फरमा रहे हो ना जलसा मेराज को, हुजूर ने पूछा असबकनी अलीयुन, क्या अली मुझसे पहले पहुंच गए? अल्लाह की आवाज आई, इन्नी नजरतु अलल अर्ज़ मा अहब्ब लहजतिन इलैका, मैंने सारी कायनात में नजर की कि आज मैं बुला रहा हूं स्पेशल मेजबानी में मेहमान को, तो मैं अपने मेहमान को वो चीज दूं जो सबसे ज्यादा महबूब है। मावजद तो आप शैन मिन अली इब्न अबी तालिब, अली के लहजे से ज्यादा आपके लिए कोई महबूब आवाज न थी, इसलिए मेजबान ने यह तोहफा दिया। अल्लाह
खत्म हो गया और इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। बस इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है जी, और आपकी जहमतों को खत्म करना है। पढ़े और सुभान अल्लाह। ये होता है ना आलिम इब्ने आलिम, माशाअल्लाह। तो मैंने इससे बेहतर तो कोई और ऐसा लहजा पाया नहीं। आपके सबसे ज्यादा महबूब हैं अली, और उन्हीं का लहजा मैंने इख्तियार कर लिया ताकि आपको वेलकम कहूं। अब मैं एक जुमला कहूंगा। आज मैं टोरंटो में इम्तिहान लूंगा, मुवालियान हैदर करार का ये जलसा है मेराज का। ईमान से बताइए, गोया अल्लाह ने एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया कि हुजूर राजी हो जाए। यही कहूं ना, हुजूर खुश हो जाए। गोया अगर खालिक हुजूर को खुश करना चाहे तो वो अली के अलावा नहीं करता, मखलूक अली से लड़के कैसे खुश कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फैसला हो गया ना। तो लहजा है, लहजा है, याद रखिएगा। टेक्निकली हजरत अली का जमीन पे रहना जरूरी है, क्योंकि जमीन को भी तो बचाना है। लिहाजा अली का लहजा अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अल्लाह ने, तो मैंने अर्ज किया था कि जो बड़े बड़े आइकान थे हमारे उस जमाने के, हमेशा खुदा की कसम छोटा बड़े की कॉपी करता है। थक गए हैं मेरे ख्याल में। छोटा हमेशा, अब हमारे आगा सरोश बड़े शायर हैं, तो हमारे, हाँ शाबाश। अब हमारे वसीम साहब का जो बेटा है, ये कल अगर शायर बनना चाहे या जाकिर बनना चाहे तो ये कॉपी करेगा आगा सरोश की। आगा सरोश कभी भी हमारे इमरान मियां के बेटे की कॉपी नहीं करेंगे। यानी छोटा, समझाना ये चाहता हूं कि छोटा हमेशा बड़े की कॉपी करता है, बड़ा छोटे की कॉपी बिल्कुल नहीं करता। ये तारीख में दो जगह, यही तो बात है, वरना मुझे आप क्यों बुलाएंगे। अगर ये तारीख में 2 मरतबा, अल्लाह सलामत रखे आप, कि बड़ा छोटे की कॉपी नहीं करता, छोटा बड़े की कॉपी करता है। यानी बड़ा नहीं चाहता है कि मैं छोटे की आवाज को यूज करूं या छोटे की शेप को यूज करूं। अब मैं क्या करूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को, कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया तो कॉपी की अली वलीउल्लाह की, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब मक्का छोड़ा तो बिस्तर पे लिटाया अली वलीउल्लाह को। बड़ी मेहरबानी, मौला सलामत रखे टोरंटो वालों, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। ये जलसा मेराज ऐसा होगा कि इंशाल्लाह फिर टीवी वाले ये नहीं कहेंगे आगा साहब को कि हमें जलसा मिला ही नहीं, गूगल पे गए। अब ऐसे जलसे होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो याद रख लीजिए, मैंने अभी अर्ज किया था, जलसा मेराज बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे जहां पर मैं हमेशा जलसा मेराज पढ़ता हूं, मेरे साथ 57 जलसे और होते, 58वां मेरा है। एक ही रोड पे विद इन 3 माइल्स 58 जलसे होते। जी हाँ, पूरी, जी हाँ, आप तो रह चुके हैं, ये तो वहां रह भी चुके हैं मेरे पास। तो उन्होंने देखा कि पूरी कोनी आइलैंड एवेन्यू 3 मील दुल्हन बनी होती है कि जलसे हो रहे हैं मेराज के। तो एक दफा
हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि आज आप अपना जलसा जल्दी ख़त्म करके हमारे जलसे में आए, रात भर चलेगा। तो मैं वहाँ पहुँचा, वो इत्तेफाक से मौजूद है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। मैंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी जिंदा जलसे पढ़े थे, आज मुर्दा जलसे पढ़ने आया। अब जो मैंने कहा मुर्दा जलसा, तो वो तो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा खबरदार जो हमारे जलसे को मुर्दा कहा, हमारे बड़े पैसे लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई बात ये है, जरा ये सोचो भी तो सही कि हदफ क्या था मेराज का। ये तो पढ़ते हो कि गए, ये भी पढ़ते हो बुराक आया, ये भी पढ़ते हो जिब्रील लेकर गए साथ, ये भी पढ़ते हो आसमानों से गुजरे, ये भी पढ़ते हो जन्नत जहन्नम के मनाजिर भी देखे, ये सब कुछ पढ़ते हो, जल्दी गए भी जल्दी आए भी। आखिर पूछो भी तो सही कि इतना जो एहतमाम किया अल्लाह ने, तो किसके लिए किया था, मकसद क्या था? मकसद क्या था, बुलाने का मकसद क्या था? तो ये आयत तो आपने सुनी है हजारों मरतबा, या अय्युहा रसूल बल्लिग माँ, बस माँ पे रुक जाए, माँ से आगे नहीं जाना। या अय्युहा रसूल बल्लिग माँ, ए रसूल गदीर में पहुंचा दीजिए माँ, माँ को पहुंचा दे। माँ है मौसूला, सिला को चाहती है। अब ये माँ क्या है? हमने पूरा कुरान छान मारा, 23 साल हयात पैगंबर देखी, हमें माँ नहीं मिली। अगर मिली तो एक जगह, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। शबे मेराज में अल्लाह ने अपने बंदे को जो बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि माँ की वही की। तो बुलाया था विलायत अली के लिए, हदफ था विलायत अली, और तुफा खिलवा के अता किया वजूद फातिमा। तो आज असल जो मेराज है वो बदन है, अली और बतूल उसकी रूह है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुलाजा फरमाया आपने जनाब, थक तो नहीं गए ना? खत्म करूं मैं? तो अब समझ में आ गई बात कि जिंदा जश्न क्या होता, जिसमें मां का भी तस्करा हो और वजूद फातिमा का भी तस्करा हो। टोरंटो वालों, ये कदर आप ही करेंगे इस नुक्ते की। सुन लीजिए आज आखिर क्या वजह है, जमीन पे विलायत अली क्यों नहीं दे दी? अली को अबू तुराब बना दिया, तो क्या हर्ज थी यही तुराब पे ही दे देता? जमीन पे फातिमा का वजूद क्यों ना मिला? यही के किसी तुफा से नूर मुनाकिस हो जाता, सुल्ब पैगंबर से बतरे खदीजा में। यह जहमत क्यों की, वहां क्यों बुलवाया? यही तो अल्लाह ने बताना था कि जमीन इतनी पस्त है, न विलायत अली को बर्दाश्त कर सकती है, न वजूद फातिमा को बर्दाश्त। अब जिनसे मौला अली और बीबी फातिमा की मोहब्बतें हजम नहीं होती, वो अपना मिजाज अर्श जैसा करे, फर्श वालों से बर्दाश्त नहीं होता। ये वजूद नूरानी है, ये उधर का वजूद है, इधर आया है उधर का वजूद। ठीक है जनाब? जलसे मैंने भी बड़े सुने हैं और पढ़े भी बहुत हैं। मैंने एक जलसा सुना कि आ रहे थे चौथे आसमान पे मूसा मिले, कहा कितनी नमाजें मिली, कहा 50। मूसा ने कहा मैं भुगत चुका हूं, पढ़ते पढ़ते ये कोई नहीं, सब नबी के गले पड़ जाती है। जैसे आजकल नॉर्थ अमेरिका वाले कर रहे हैं,
नॉर्थ अमेरिका में यही हो रहा है कि मौलाना के गले डाल दो, पैकेज डील कर दो, शाबाश, सेंटर के गले डाल, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। तो पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, बैक एंड फोर्थ बेचारे गए, कई दफा गए, मिन्नत की जाके अल्लाह की, फिर वापस गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, तो आखिर में अल्लाह मान गया कि 5 पे राजी हो गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जी हाँ, जलसा मेराज में आज ये उक़दा खुल जाए। जी हाँ, ये कॉमन है, कॉमन है, हर जलसा मेराज में इसका पढ़ा जाना जरूरी है। पहली बात तो ये तौहीन पैगंबर है, ये तौहीन पैगंबर है, इसलिए कि मूसा वो है जो तूर पे जाए तो इस शर्त के साथ जाए, इखलान अलैक, जूते उतार अपने, तू आ रहा है तजल्ली नूर पे, तूर पे, तूर पे, तूर पे तू आ रहा है, तो जूते पहन के नहीं आ सकता। और हुजूर बकौल मेरे भाइयों के तस्मा खोलने लगे, तस्मा खोलने लगे, अर्श से आवाज आए, मा फौक़ अर्श से, मेरे हबीब वो कलीमुल्लाह के लिए हुक्म था तुम कलामुल्लाह हो। अल्लाह अकबर। शाह जी मौला सलामत। मूसा जूतों के साथ तूर के पहाड़ पे नहीं जा सकते। आका को क्या कहा, तुम जूतों के साथ मस्जिद अक्सा आओ। भैया आप मस्जिद में जूते उतारते हैं कि नहीं? बताओ कि हुजूर ने उतारे हो। अभी भी आप नहीं समझ रहे, हुजूर हम जैसे हो सकते हैं? भाई मस्जिद अक्सा गए हैं ना, तो जूते तो नहीं उतारे ना। तो जूता पैगंबर का ऊपर, कायनात के नबी और इमाम नीचे, आसमान नीचे, जमीनें नीचे, फिजाएं हवाएं नीचे, अर्श नीचे रह गया। माफौकल अर्श गए हैं ना, सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया, हुजूर ऊपर चले गए। कायनात नीचे है, हुजूर का जूता ऊपर है, और मैं अब कहां रखूं कि वही हुजूर नीचे है, मेरे मौला अली के पांव ऊपर है। बस जश्न तमाम हुआ। ये आम पढ़ा जाता है, मैंने भी सुना है। असल में मैंने उनको बताया, इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था, मैंने कहा असल बात ये थी कि मिली तो थी 5। अल्लाह ने कहा, जब हुजूर ने कहा ना कि वो तो 50 पढ़ते रहे, अल्लाह ने आवाज दी, मैं आज नमाज जो दे रहा हूं ना मेरे हबीब, मैंने आपकी उम्मत के लिए स्टेटस बदल दिया। कैसे? फलहु अशरतु अम्सालिहा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरतु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा उसके नामे आमाल में 10 लिखी जाएंगी। पढ़ेंगे मेरी उम्मत वाले 5, मूसा लिखी जाएगी 50। ठीक है जी। एक बात और समझ लीजिए, बस इंशाल्लाह फिर बाकी जो गुफ्तगू है, जिंदगी है तो कल ज़रा आप आ जाएं वक्त पे, दूसरों को भी कहें, थोड़ा सा कॉल्स वगैरह भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजमा आए। कल मैं इंशाल्लाह 7 आसमानों की और अर्श की 8 रूदादें पढ़ूंगा। मसाइब तो पढ़ूंगा सफ़र इमाम हुसैन का, फ़ज़ाइल में पढ़ूंगा 7 आसमानों में मेराज की शब क्या हुआ और अर्श पे मेराज की शब क्या हुआ। यह ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंटेशन है, हाफजे की मदद से पूरी पढ़ूंगा। अल्लाह के फजल करम से यूं समझें कि 2.5 से पारे कल पढ़ूंगा हाफजे की मदद से। बस तकरीर तमाम हुई। यहाँ पर एक जुमला सुन लें, इंशाल्लाह फिर परसों का जश्न भी याद रहे। और
जुमे का भी एक जुमला सुन लीजिए, इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल आएगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वो जुमला ये है कि मैंने अर्ज़ किया कि मौला अली का लहजा, मौला अली के पास जो लहजा है, यूं अगर मैं कहूं कि अल्लाह की ज़ात ने मौला अली का लहजा इस्तेमाल किया, यह तो नहीं कहूंगा कि मौला अली ने अल्लाह का लहजा इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह का लहजा पहली मर्तबा समझा ही शब मेराज में गया है। कोई समझ रहे या नहीं? आप बताइए, ऐसे है ना? मेरे शागिर्द पूछ रहे थे जाफर भाई हौजे वाले कि आज क्या पढ़ेंगे। मैंने कहा वो पढ़ूंगा जो आपने नहीं सुना हो। सारी चीज नहीं पढ़ी है अल्लाह के फजल करम से। तो अब जरा जुमला कहूं और इजाजत लूं आपसे, इंशाल्लाह आप दुआएं देते हुए जाएं। ढेर सारी दुआएं आपको दे रहा हूं। मेराज का जलसा है, बेसत का दिन है। अल्लाह ताला मेराज और बेसत के सदके में आप सबको सरफराज फरमा दे। और जुमला सुन ले कि अली ने लहजा इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह का, अल्लाह ने लहजा इस्तेमाल किया अली का। तो अब जुमले की कदर करना। मौला अली के लहजा खालिक के पास भी है, मखलूक के पास भी है, मगर ऐसा यूनिक है कि मौला अली के अलावा कायनात में कुल दो ने अली का लहजा इस्तेमाल किया, या अल्लाह ने मा फौकल अर्श या ज़ैनब ने दरबार यजीद के साथ। या अल्लाह तुझे वास्ता है यौम बेअसत का, हम सबको बेअसत रसूल समझने की तौफीक अता फरमा। हुजूर आयाते कुरानी की तिलावत के लिए, तज़किया नफ्स के लिए, तालीम किताब व हिकमत के लिए तशरीफ लाए थे। इन सारी नेमतों से हमें माला माल फरमा। हुजूर मुजस्समा अखलाक बना के भेजे गए थे, हम सबको खुश अखलाक बना। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, हमें इस जमाने के लिए जहमत करार न दे। जिस मुआशरे में हुजूर ने खवातीन के एहतराम का सबक दिया, हम सबको हुकूकुन नास, हुकूकुन निस्वान अदा करने की तौफीक मरहमत फरमा। जिस मुआशरे में इंतकाम के खिलाफ हुजूर ने मुआफ़ी को रवाज दिया, हम सबको एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा। बारहा हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, ज़ियारत अमाकिन मुक़द्दसा नसीब फरमा, ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा। इमाम ज़माना का चेहरा देखने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के साथियों में शुमार फरमा। जलसा मेराज के सदक़े में हमें मेराज अखलाक़ी अता फरमा, हमें उरूज नफ्स अता फरमा। तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, हुजूर और उनकी आल के साथ हमेशा मोहब्बत रखने की तौफीक दे। हमारी नस्लों में विलायत अली बरकरार रख, हमारी नस्लों में ज़ियारत हुसैन का जज्बा बरकरार रख, अज़ादारी हुसैन बरकरार रख। आज क्योंकि ज़ाहिर जलसा मेराज पड़ा है और नमाज मेराज में दी गई है, हम सबको नमाजी बना। नमाजी इमामों के मानने वाले हैं, गुलामों को भी नमाजी बना। जिस तरह हुजूर हसद, निख्वत, तकब्बुर, लिसानी तासुब, तफव्वुक के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करने आए थे, हम सबको मुआखात मोहम्मदी, मुसावात मोहम्मदी की तस्बीह में परो दे। इस जश्न को कबूल फरमा, बानियान जश्न को जजाए खैर मत फरमा। हमारे आगा सरोज साहब, आगा फरद साहब, आगा हुसैन शिराजी साहब और दीगर नारे लगाने वाले भाई बहन जितने भी आज मौजूद हैं, सबको जजाए खैर मरहमत फरमा। हुसैनिया की तायीद, हिमायत, माली इमदाद की सबको तौफीक अता फरमा। और मेराज के सदक़े में हुसैनिया को फाइनेंशियल मेराज अता फरमा। बारहा हुसैनिया के कर्ज़ों को अदा फरमा। आगा फरद साहब की तौफीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा। जो बुज़ुर्ग दामे दिरहम सुखन कदम हुसैनिया का तामुन करते हैं, उनको जज़ाए खैर दे। जो नहीं कर रहे उनको तामुन करने की तौफीक अता फरमा। जो जोश व खरोश से रोज़े के बावजूद मौला अली के नारे लगा रहे थे, इन सब को जिंदा और सलामत रख। और मुझ फ़कीर ने भी जो ये पढ़ा है, कज मुझ सुखन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और इस जश्न को हमारे लिए बाइस नजात
करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनीन, यहाँ पे कल जो मजलिस होगी उसमें सोच सलाम और मरसिया सब पढ़ा जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि 7:30 बजे तक यहाँ पे आ जाएं। वैसे सूरह यासीन तो तकरीबन 7:15 बजे ही शुरू हो जाती है और प्रोग्राम इंशाल्लाह मगरिब से पहले ख़त्म हो जाएगा। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तक़ीना अलियन वलीउल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तक़ीना अलियन हुज्जतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या